বৰ্তমান আহিছিলোঁ প্ৰশিক্ষণ চেণ্টাৰত। এয়া সদস্য চাওক দেৰি আছেহি, চেষ্টা কৰি অকণমান দেখাবলৈ আপোনালোকক প্ৰশিক্ষণৰ। আৰু আমাৰ মাজত আহি আজি উপস্থিত আছেহি আমাৰ যি আপোনালোকৰ আগত প্ৰশিক্ষণ দিব প্ৰশিক্ষক মানস বৰুৱাদেৱ। তেখেতে প্ৰশিক্ষণ দিব ষ্টাৰ্টআপ টক ফ্ৰম আইডিয়া টু মাৰ্কেট কেম্পেইনিং কাষ্টমাৰ মাইণ্ডছেট। মানস বৰুৱাদেৱক এখন এই কামচৰা সম্বোধন জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু আজি মাননীয় স্বাগতম বাইদেউ আগবঢ়াই দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। সকলোকে নমস্কাৰ। আৰু মোৰো আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আহি সকলো ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। ইয়াতে আজি প্ৰায় 1টামান বজালৈকে বিভিন্ন ছেশ্যনত ট্ৰেইনিংবিলাক অনুষ্ঠিত হ'ব। মই আপোনালোকক সকলোৰে অনুৰোধ জনাম যাতে আপোনালোকে সকলোৱে এই ট্ৰেইনিংখিনি গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পৰা যিখিনি কথা শিকি যাব পাৰিব সেইখিনি আপোনালোকক বহুখিনি উপকৃত কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া ট্ৰেইনিং ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্টআপৰে সৈতে আৰম্ভ হ'ব। আৰু মই আমাৰ প্ৰশিক্ষক তেওঁ ইয়াতে উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতক ট্ৰেইনিং ছেশ্যনটো চলাই নিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সকলোকে নমস্কাৰ। মোৰ নাম মানস বৰুৱা। আমাৰ এটা এপ আছে জ্ঞান পাণ্ডা, যোনটো অনলাইন ক্লাছৰুম লাৰ্ণিং এপ। চ' বেচিকেলি জ্ঞান পাণ্ডা কি হয় মই যদি ক'ব যাওঁ, জ্ঞান পাণ্ডা এটা এপ হয় য'ত এজন ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্টে যেতিয়াই মন যায় তেওঁলোকে তেতিয়াই ভিডিঅ'ত চাই নিজৰ ক্লাছসমূহ কৰি যাব পাৰে, নিজৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি যাব পাৰে। ঠিক আছে। চ' আজি যোনটো মোক টপিক দিছে ষ্টাৰ্টআপ আইডিয়া ফ্ৰম আইডিয়া টু মাৰ্কেট, এটা একচুৱেলি এটা বহুত ব্ৰড টপিক কৰিবলৈ লৈ এটা প্ৰব্লেম আইডেণ্টিফাই হৈছে আৰু সেই প্ৰব্লেমটো যদি এটা চলিউশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে আৰু সেই চলিউশ্যনটো যদি মানুহৰ সহায় কৰে দেন সেই যোনটো আপোনাৰ চলিউশ্যন হ'ব সেই চলিউশ্যনটো আপোনাৰ এটা ষ্টাৰ্টআপ হিচাপে মানে আপুনি ক'ব পাৰে। ঠিক আছে। বাট এতিয়া মানে চব অনলি ষ্টাৰ্টআপ এটা আপুনি যেতিয়া কৰিব আপুনি অকল প্ৰব্লেমটোৰ চলিউশ্যনটো ভাবিলেই নহ'ব, কাৰণ প্ৰব্লেমটো যোনটো চলিউশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব সেই চলিউশ্যনটো ধৰি লওক মানুহবোৰে ভাল পাব লাগিব। মানে যেনেকৈ যেতিয়া আমি দোকান এখন খোলোঁ, দোকানখনলৈ আহিব পাৰে বা ধৰি লওক মানুহৰ সুবিধা হওক, হয়নে? আৰু আমি এটা মানে লোকেশ্যন চাই আমি দোকানখন এটা কেটেগৰী ডিচাইড কৰোঁ যে এইটো লোকেশ্যনত এইটো কেটেগৰীৰ দোকান দিলে ভাল হ'ব বা এইটো লোকেশ্যনত এইটো কেটেগৰীৰ দোকান দিলে ভাল হ'ব। চ' চিমিলাৰলি যেতিয়া ষ্টাৰ্টআপ এটা ক্ৰিয়েট কৰা হয় তো তাতে আমি যেতিয়া কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ আমি সমাধান উলিয়াম, সেই সমাধানটো আমি যেতিয়া আমি কৰি যাম তেতিয়া কৰোঁতে বহুতখিনি আপোনাৰ পইণ্ট চাবলগীয়া হয়। যেনে সেই যোনটো আমি চলিউশ্যনটো বা সেই চলিউশ্যনটোৰ পৰা কিমানখিনি মানুহ সহায় হ'ব, চ' এই গোটেইখিনি পইণ্ট নোট ডাউন কৰিবলগীয়া হয়। আৰু তাৰোপৰি যেতিয়া কি হয় আপোনাৰ আপুনি চলিউশ্যনটো উলিয়ালে কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন, সেই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা চলিউশ্যন উলিয়ালে নহ'ব, চলিউশ্যনটোৰ বিষয়ে মানুহে গম পাব লাগিব। আজি যেনেকৈ আমি জ্ঞান পাণ্ডা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, চ' এই জ্ঞান পাণ্ডাৰ বিষয়ে আমি আমাৰ মানুহক কেনেকৈ জনাম, যোনখিনি ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে আমাৰ জ্ঞান পাণ্ডাৰ বিষয়ে কেনেকৈ হ'ব, তেওঁলোকে জ্ঞান পাণ্ডাৰ বিষয়ে গম পাবলৈ আমি এটা ইউটিউব চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ। চ' ইউটিউবৰ চেনেলৰ থ্ৰুদি আমি যোনবোৰ ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'বোৰ চাই ষ্টুডেণ্টবোৰে গম পায় যে জ্ঞান পাণ্ডা নামৰ এটা এডুকেশ্যন চেনেল আছে য'ত ক্লাছ 10ৰ ক্লাছেছবোৰ কৰিব পাৰি। চ' ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া আপোনালোকে কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব, তেতিয়া এই চলিউশ্যনটো আপোনালোকে মানুহবোৰৰ ওচৰলৈ কেনেকৈ পঠিয়াব সেইটোৰ ওপৰতো আপোনালোকে মানে ফ'কাছ কৰিব লাগিব যে কোনটো মাধ্যমেৰে মানুহে গম পাব। আজিকালি আপোনাৰ অনলাইনৰ যুগ বুলি কৈছোঁ, অনলাইন যুগ মানে কি আপোনাৰ ফেচবুক আছে, ইউটিউব আছে, আজিকালি সকলো মানুহে ফেচবুক ইউটিউব ইউজ কৰে। চ' সেইটো এটা মাধ্যমৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে যদি কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে, চলিউশ্যনটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে মানে মানুহক জনাব পাৰে। আজিকালি আপোনালোকে দেখা পাব পাৰে আপোনাৰ কি হয় বহুত কাপোৰৰ দোকান, চাপ'জ গুৱাহাটীত আছে, সেই গুৱাহাটীত থকা কাপোৰৰ দোকানখনে কি কৰে নিজৰ যোনটো কাপোৰ আছে সেইবোৰ ভিডিঅ' বনাই ফেচবুক বা ইউটিউব বা ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰে আৰু তাৰ থ্ৰুদি তেওঁলোকে মানুহক জনাবলৈ সক্ষম হৈছে যে গুৱাহাটীত থকা দোকানখনে আজি চাপ'জ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ত থকা মানুহক জনাবলৈ সক্ষম হৈছে যে আমাৰ ওচৰত এইখিনি বস্তু আছে আৰু সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে আমাৰ থ্ৰুদি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। চ' চিমিলাৰলি আপোনালোকে যদি কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে তো আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুদিও মানে নিজৰ যোনটো আপোনালোকে চলিউশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিছে কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ সেইটো আপোনালোকে মানুহক জনাব পাৰিব। আৰু তাৰ লগতে আপোনাৰ কি হয় অকল
আপুনি কিবা এটা যদি প্ৰব্লেমৰ সলিউশন ক্ৰিয়েট কৰে বা যেতিয়া মানুহে দোকান এখন খোলে, এখন দোকান এজন মানুহে অকলে চলোৱাটো পসিবল নহয়, সম্ভৱ নহয়। সো এখন দোকান ভালদৰে সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ কেইজনমান মানুহ লাগে। সো সিমিলাৰলি যেতিয়া আপোনালোকে কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ ধৰি লওক সলিউশন ফাইণ্ড আউট কৰিলে, সো আপোনালোকে সেই যোনটো সলিউশনটো ক্ৰিয়েট কৰিব, সো তাৰ কাৰণে আপোনাক এটা টিম লাগিব। আপুনি অকলে বহু কাম কৰিব পাৰে, বাট অকলে বহুখিনি কাম কৰাটো সম্ভৱ নহয়। সম্ভৱ হ'ব, বাট টাইম বেছি লাগিব। সো কম টাইমত বেছি কাম কৰি আপোনাৰ যোনটো আপুনি মানে প্ৰসেছ ক্ৰিয়েট কৰিছে সেইটো যদি স্পীডত নিবলৈ হয় আপোনালোকক এটা টিম লাগিব। সো ডেটছ ৱাই মানে কি হয়, আপুনি যেতিয়া কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ সলিউশন ক্ৰিয়েট কৰিব, তেতিয়া সেই সলিউশনটো ক্ৰিয়েট কৰোঁতে এটা টিম যোনটো মানে বিল্ড কৰিব, টিম বিল্ডিংটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয়। কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ এটা ভাল টিম হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, আপুনি কামখিনি ভাগ কৰি ল'ব পাৰিব যে মই এইটো কাম কৰিম, বা আপুনি এইটো কাম কৰিব, বা তুমি এইটো কাম কৰিব। সো সেইটো ফালৰ পৰা কি হ'ব, আপুনি কামখিনি ভাগ কৰি ল'লে অতি সোনকালে আগবঢ়াই নিব পাৰিব। আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে ধৰি লওক কিবা এটা সলিউশন ক্ৰিয়েট কৰিলে বা কিবা এটা আপোনালোকে প্ৰডাক্ট বনালে, বিল্ড কৰিলে, তাৰপৰা সেইটো বিল্ড কৰাৰ পাছত আপোনাৰ নেক্সট কি হ'ব, আপোনালোকে প্ৰথমে প্ৰডাক্টটো বিল্ড কৰিলে, তাৰপৰা আপোনালোকৰ এটা টিম বনিলে, তাৰপিছত আপোনালোকে মাৰ্কেটিং কৰিলে, নেক্সট আহিব আপোনাৰ চেলছ পাৰ্ট। আপোনালোকে অকল বস্তুটো বনালেতো নহ'ব, বস্তুটো বিক্ৰী হ'ব লাগিব। দোকানখন অকল খুলি থ'লে হ'ব জানো যদি বিক্ৰী নহয়? কেতিয়াও দোকানখন প্ৰডাক্ট বা কিবা এটা আপোনালোকে সলিউশন ক্ৰিয়েট কৰিব, সেই বস্তুটো কেনেকৈ মানে মানুহক বিক্ৰী কৰিব বা কিমান এটা প্ৰাইচত মানুহক বিক্ৰী কৰিব, সো সেইখিনি পইণ্টটো মানে চাবলগীয়া হয়। কাৰণ সকলো মানুহৰ কাৰণে সকলো প্ৰাইচটো এফৰ্ডেবল নহ'ব পাৰে। কিছুমান মানুহে কিবা এটা বস্তু 2000 টকাত কিনিব পাৰে, বাট সকলো মানুহে সেই বস্তুটো 2000 টকাত কিনিব নোৱাৰিব পাৰে। সো সেইকাৰণে কি হয়, যেতিয়া প্ৰডাক্ট এটা পৰা কিবা এটা সলিউশন ক্ৰিয়েট কৰে, সেই প্ৰডাক্টটো অলপ সলিউশনটো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে মানে প্ৰাইচ ৰাখিব লাগিব যাতে আপোনালোকে যোনখিনি কাষ্টমাৰক বিকিম বুলি ভাবিছে সেই কাষ্টমাৰখিনিয়ে যাতে বস্তুটো কিনিব পাৰে। সো আৰু লাষ্টত মই যদি ক'বলৈ যাওঁ, আপোনালোকে এটা ষ্টাৰ্টআপৰ যদি মেইন পিলাৰ মানে মেইন পাৰ্ট কেইটা ক'বলৈ যাওঁ, ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ সলিউশন ক্ৰিয়েট কৰিলে, সলিউশনটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত আপুনি যদি নিজৰ টিম এটা বিল্ড কৰিলে, টিমটো বিল্ড কৰি আপুনি যোনটো ছাৰ্ভিচ দিছে বা আপোনালোকে যোনটো প্ৰডাক্ট বিকিব, সেইটো আপোনালোকে ধৰি লওক থ্ৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া বা বেলেগ কিবা মাধ্যমৰ যোগেদি আপোনালোকে মাৰ্কেটিং কৰিলে, তাৰপাছত লাষ্টত আহিব আপোনালোকৰ চেলছ পাৰ্টটো। কাৰণ আপোনালোকে প্ৰডাক্টটো বনোৱাৰ পাছত বা ছাৰ্ভিচটো দিয়াৰ পাছত চেল কৰিব লাগিব। সো লাষ্টত আপোনালোকে মানে চেলছ পাৰ্টটো চাব লাগিব। আৰু এইকেইটা পাৰ্ট যদি মানে আপোনালোকে নিজৰ এক্সপেক্টেড তেনেকৈ যদি ৰান কৰিব পাৰে, ডেফিনেটলি মানে ষ্টাৰ্টআপ এটা ৰান কৰিব পৰা যায়। সো মোৰ ক'বলগীয়া এইখিনিয়ে আছিলে। সো কম টাইমত মই যিমানখিনি পাৰোঁ ক'লোঁ। কাৰোবাৰ কিবা কুৱেশ্যনছ আছে যদি কৰিব। কাৰো একো কুৱেশ্যনছ নাই চাগে। সো ইয়াতে মই শেষ কৰিলোঁ। স্কোর সায়েন্টিস এগ্রিকালচার এক্সটেনশন রানী পিক রানী তেখেতে ৰাণীৰ পৰা আহিছে। তেখেতে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে বুজাই দিব কেনেকৈ গাহৰি পালন কৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে। আমি তেখেতক আমাৰ এই টিংখাং সমষ্টি আজি মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ।
আৰু আজি তেখেতক আমাৰ যি প্ৰশিক্ষণ এই প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়াই দিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। नमस्कार आप लोग सबको। কাজ দিবি না तो असमिया तो मेरा इतना क्लियर नहीं है, इतना फ्लुएंट नहीं है, तो मैं हिंदी में आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। बाकी मेरे साथ ये सर बैठे हैं, मैडम बैठे हैं, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोग कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तब आप लोग मैडम को आप पूछ सकते हो, मैडम विल ट्रांसलेट इट टू मी, मैं आप लोगों का क्वेरी का जवाब दूंगा। तो इस टाइप के आप लोग कन्वर्सेशन करने से ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि असमीज में मैं इतना फ्लुएंट नहीं हूँ और हिंदी में आप लोग फ्लुएंट नहीं है, बट फिर भी हिंदी नेशनल लैंग्वेज है तो हिंदी सबको मोर देन 50% आता ही है, समझ आता है। बोलना भले डिफिकल्ट हो लेकिन समझ आता है, तो समझना ही मेन चीज़ है। पिग फार्मिंग समझना ही मेन चीज़ है, ऐसा नहीं है। जो मेन बेसिक साइंटिफिक थिंग है उसको अगर आप लोग समझ लिए, उसके लिए उसके बाद कोई भाषा मैटर नहीं करता है। लैंग्वेज डजंट कम एज ए बैरियर, उसके लिए आपको समझना मेन चीज है। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। आप लोगों का अगर इंटरेस्ट है, आप लोग पिग फार्मिंग में कोई अच्छा कोई बिजनेस कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहते हैं, खुद का अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, आप अपने विलेज को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपना कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं, इस टाइप का अगर आप लोग के अंदर एक जील है, आप लोग चाहते हो कि मैं पिग फार्मिंग को लेके कुछ करूं, तो उसके लिए लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। आपको जो नहीं समझ आता है आप मेरे को पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं भी आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों के पास कितना एलिमेंट है, आगे कितना करने का प्लान है, प्रोग्रेसिव फार्मर कौन है, कैसे आप लोग एफपीओ फॉर्म कर सकते हो, कैसे आगे चल के एक महिला वुमेन एसएचजी वुमेन एफपीओ आसाम का डिफरेंट एरियाज में हम लोग सर्वे करते हैं या डिफरेंट एरियाज में हम लोग काम करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट वुमेन एफपीओ एसएचजी ओनली बेस्ड ऑन वुमेन, मतलब महिला देश में हम लोग शुरू करते हैं, वो भी है, उसका भी आप लोग एग्जांपल देख सकते हो। और मेल फीमेल मिलकर भी कर सकते हो, ऐसे विलेज लेवल, कम्युनिटी लेवल, ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल आप लोग कर सकते हो। तो इस टाइप का डिफरेंट मॉडल्स है, मैं उस पर आऊंगा, धीरे धीरे आऊंगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट से शुरू करता हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब कोई भी एंटरप्राइज हो, चाहे वो काउ फार्मिंग हो, बफेलो हो, राइस फार्मिंग आप लोग बहुत कर रहे हो आजकल, राइस फार्मिंग का हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है, कोई भी फार्मिंग हो उसको एज ए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल में नहीं करना है कि मैं चल रहा हूँ, मेरा परिवार चल रहा है, 4 लोग खा रहे हैं, उस लेवल का नहीं करना है। हम लोग को उसको ऐसे होल बिजनेस लेवल पे ले जाना है, ताकि उसका एक प्रॉफिट परसेंटेज आए जो मेरा फैमिली चलाने के लिए मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे, एक एक्स्ट्रा इनकम आए। जैसे महिलाएं पिग फार्मिंग करते हैं तो बहुत जगह हम लोग देखेंगे आगे, बहुत एग्जाम्पल है कि उनके हाथ में थोड़ा पैसा आता है, कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ वुमेन, जो बहुत जरूरी है। ऐसे महिलाओं के हाथ में पैसा नहीं रहता है। पिग फार्मिंग से क्या होता है, महिलाएं अगर अपना पिग बाहर बेचते हैं या अपने पिग फार्मिंग रिलेटेड पिगलेट बेचते हैं तो उनके हाथ में कैपिटल आता है, जिससे आप अगर शॉर्ट टर्म में सोचोगे तो आपके पास पैसा है, लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो आपका कम्युनिटी का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, आपका विलेज का बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आपके पास पैसा आएगा, आप बिजनेस करोगे तभी आपका फैमिली ज्यादा डेवलप होगा, आपका फैमिली डेवलप होगा तो आपका कम्युनिटी होगा, आपका विलेज होगा। तो इस टाइप का ओवरऑल आसाम के ग्रोथ के लिए आप लोगों को आगे आना है और आप लोगों को क्या क्या करना है पिगरिंग में वो हम दिखाएंगे। क्रेडिट असिस्टेंस वो भी एक मेजर चीज है। गाँव में अगर कोई भी पिग फार्मिंग शुरू करना चाहता है तो पहले ये पूछता है सर पैसा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पिग फार्मिंग अगर आप बड़ा स्केल में करना चाहते हो तो एक हाई अमाउंट ऑफ आपको पैसे का जरूरत होता है, जो हम लोग के फार्मर, नॉर्थ ईस्ट का फार्मर के पास नहीं होता। इसीलिए वो किचन के पीछे 2-3 पिग लेके अपना जो किचन वेस्ट है उसको लेके बैकयार्ड पिग फार्मिंग में फोकस करता है। तो उसको बड़ा स्केल में करने के लिए आप लोग को एक क्रेडिट सोर्स का जरूरी है, मतलब कहाँ से आप लोग को क्रेडिट मिल सकता है, उस बारे में आप लोगों को हम लोग बोलेंगे कि कहाँ से आप लोग को क्रेडिट मिल सकता है और उससे आप लोग क्या क्या कर सकते हो। नेक्स्ट प्लीज सर, नेक्स्ट So this is the overview of the livestock sector। अगर आप लोग देखते हो इंडिया का, ये इसमें हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ये जस्ट ओवरव्यू है जिसमें आप देख सकते हो कि आज का डिमांड क्या है, आगे का डिमांड क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यही मेन चीज है। आप पिग फार्मिंग या कोई भी एनिमल का फार्मिंग का देखो, मिल्क, मीट, एग, ये तीनों का डिमांड कितना आगे है।
ठीक है, मिल्क का भले नॉर्थ ईस्ट में हम लोग अभी थोड़ा ऑर्गेनाइज डायरी शुरू किया आसाम में, पूर्वी एंड ऑल आसाम गवर्नमेंट शुरू किया है। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अभी भी मिल्क इतना ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। अभी भी मीट इज द मेन सेक्टर नॉर्थ ईस्ट में। पिग भी हो तो उसका मीट मेन सेक्टर है, गोट भी हो उसका मीट मेन सेक्टर है, पोल्ट्री भी हो तो मीट सेक्टर इज द मेन हम लोग जहाँ पे फोकस कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। मिल्क भी है, आजकल मिल्क बहुत ऑर्गेनाइज है। तो इसका इस ग्राफ का यही मतलब है कि आज क्या डिमांड है, आगे क्या होगा, और उसका अगर 50 साल का भी हम लोग प्रोजेक्शन करेंगे तो मिल्क ना आप जितना पसंद करते हो, मिल्क अगर आप हफ्ते में एक बार भी लेते हो, मिल्क तो क्या है एडोलेसेंस पीरियड में बच्चे ज्यादा लेते हैं, थोड़ा एज के बाद 18-19 के बाद कोई मिल्क उतना पसंद नहीं करता। ऊपर से आज के डेट में लैक्टोजन इंटॉलरेंस सबको है, इट इज अ वेरी लाइफस्टाइल डिजीज सिम्टम्स है। मतलब जिसको दूध पीने के बाद या दूध मिलावटी चाय पीने के बाद भी लोगों को हजम नहीं होता, उसको डॉक्टर से डाइटिशियन के टर्म में आप लैक्टोजन इंटॉलरेंस बोल सकते हो। तो वो एक आजकल की मेजर कंसर्न है। उसके बाद तो मेन हम लोग जो फोकस करेंगे मीट सेक्टर नॉर्थ ईस्ट का, जिसका डिमांड दिन पे दिन बढ़ रहा है। हम लोगों का क्या है, नॉर्थ ईस्ट में जितना मीट प्रोड्यूस होता है, हम लोग का जो डिमांड है, मान लीजिए 100% अगर हम लोग चाहते हैं और तो ओनली 40 to 50% हम लोग दे सकते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट के साथी स्टेट से। आधे से ज्यादा जैसे बिहू हो गया, क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, गुवाहाटी में अगर आप जाओगे तो आधे से ज्यादा मीट हरियाणा और पंजाब से आता है, ट्रेन भर भर के गुवाहाटी स्टेशन में आता है। वो गाँव ट्रेन भर भर के आता है, क्योंकि हम लोग का फार्मा का इतना कैपेसिटी नहीं है। यहाँ का लोगों का जो डिमांड है, पोर्क का डिमांड है, पोर्क यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं, टोटल नॉर्थ ईस्ट के लोग। तो यहाँ के लोगों का जो पोर्क का डिमांड है वो सप्लाई, उतना सप्लाई हम लोग के पास नहीं है। तो एक डिमांड एंड सप्लाई गैप बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो इस अगर हम लोग वी कैन टारगेट दिस गैप, उस डिमांड एंड सप्लाई गैप को, तभी हम लोग बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां से हार्वेस्ट कर सकते हैं। वही डिमांड के कहाँ पे डिमांड है और कहाँ से मैं सप्लाई दे सकता हूँ, इन दोनों चीज को जब भी हम लोग परपेंडिकुलर, जैसे रेलवे चलता है, रेलवे का पटरी दोनों एक साथ पर चलता है, इस टाइप का अगर हम लोग डिमांड और सप्लाई को कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं तो नया नया बिजनेस एंटरप्राइज खड़ा कर सकते हैं, और उस बिजनेस एंटरप्राइज का कोई नुकसान नहीं होगा। अनटिल एंड अनलेस पिगरी सेक्टर में एक ही नुकसान है जो कि है डिजीज, वो भी मैक्सिमम डिजीज का आज के डेट में वैक्सीन यू कैन गेट बहुत सस्ते में आप लोगों को वैक्सीन मिल जाता है। स्टेट गवर्नमेंट भी सप्लाई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सप्लाई आता है। लगभग हर डिजीज का आजकल वैक्सीन है। ओनली एएसएफ का जो है वो भी वैक्सीन अभी ट्रायल पे है, वो शायद कुछ दिनों के बाद आएगा। लेकिन उसके लिए भी अगर आप लोग प्रॉपर बायोसिक्योरिटी मेजर्स, प्रॉपर कलिंग मेजर्स, प्रॉपर आप उसको फीडिंग कराओ, उसको खाना अच्छे से दो, बायोसिक्योरिटी अपना फार्म पर मेंटेन करो, कहाँ से कौन सा ब्रीड ले रहे हो, ब्रीड आइडेंटिफिकेशन, वो आप फोकस करोगे तो एएसएफ बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। जैसे असम में बहुत जगह हम लोग सर्वे किए हैं, कुछ कुछ जगह में जैसे आप डिमा हसाओ जाओगे, हाफलॉन्ग जाओगे, उस साइड एएसएफ इतना अटैक नहीं किया है, या कुछ कुछ पॉकेट्स ऑफ असम है जहाँ पे एएसएफ नहीं अटैक किया है। ओनली द डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच आर अरुणाचल बॉर्डर के आसपास है, जो चाइना से पिग का डिजीज आया है, अरुणाचल बॉर्डर के आसपास, वहाँ पे डिवास्टेटिंग था, जैसे लखीमपुर देवाजी, वहाँ पे कुछ बचा नहीं है। बट सम पॉकेट्स ऑफ असम अभी भी एएसएफ आया नहीं है, तो इतना डरने का कोई बात नहीं है। और आज के डेट में उसका कोई इम्पैक्ट इतना है नहीं। आज के डेट में वो चला गया, बीच में आया था, चला गया कोरोना के तरफ। नेक्स्ट सर। तो ये कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड, एक सिंपल कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड है जो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि पॉवर्टी से आप लोग कैसे आगे चल सकते हो इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टॉक फार्मिंग। जैसे आप लोग अगर कोई किसी का रिलेटिव है अफ्रीकन कंट्रीज में, या कोई देखा होगा अफ्रीकन कंट्रीज का कोई डॉक्यूमेंट, आज के डेट में उन लोग के लिए लाइफ पॉवर्टी से आगे जाने का एक ही रास्ता है, वो है प्रॉपर लाइफस्टॉक। क्योंकि वहाँ वो इतना ड्राई कंट्री है, वहाँ पे चावल गेहूं ये सब उगता नहीं, तो दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द लाइफस्टॉक सेक्टर। आगे सर, तो पिगरी फार्मिंग का क्या स्टेटस है नॉर्थ ईस्ट में, ये तो हम लोग सबको पता है कि आसाम का सबसे पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है, और नॉर्थ ईस्ट में हम लोग सबसे आगे हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर कंजम्पशन एंड पिग पॉपुलेशन ऑल्सो। बट बिजनेस के मामले में हम लोग बहुत पीछे है एज कम्पेयर टू हरियाणा, पंजाब, मेनली ये दो स्टेट पिगरी प्रोडक्शन में सबसे आगे रहता है। उसके बाद यूपी, बिहार, झारखंड, आजकल ये लोग भी कमर्शियल लेवल पे पिग फार्मिंग शुरू कर दिया है। हालांकि वहाँ पे कंज्यूमर्स आर वेरी लेस, मतलब कंज्यूमर्स खाने वाले लोग कम है, लेकिन ये लोग का पूरा सप्लाई जो है
जो सप्लाई चेन है ये लोग का पूरा, वो हम लोग का जो डिमांड गैप है उसी को अटैक करता है। ये लोग दे टारगेट आवर डिमांड गैप कि हम लोग इतना प्रोडक्शन कर नहीं पाते, जो हम लोग का डिमांड है सप्लाई हम लोग का मीट नहीं करता है, तो उसी पॉइंट को वो लोग अटैक करता है कि यहाँ पे ही सप्लाई किया जाए। तो वो लोग मेनली दिया करता है फॉर फैक्ट्री पर्पस, और यहाँ पे ही ये लोग सारा ट्रेन से ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट सर। तो ये आप देख सकते हैं क्या परसेंटेज चेंज है आगे के मुकाबले, अभी कितना परसेंटेज, कितना जो कलर सबसे डीप है आप देख सकते हो वहां पे पिग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और एज कंपेयर टू द लास्ट लाइफ स्टॉक सेंसस, जिसमें 5 साल बाद सेंसस होता है लाइफ स्टॉक का, तो उसमें कितना परसेंटेज ऑफ चेंज है। गवर्नमेंट आजकल ये भी जानने का कोशिश कर रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ चेंज एक स्टेट में, कितना परसेंटेज ऑफ चेंज आ रहा है पिग का पॉपुलेशन में या कोई भी एनिमल का पॉपुलेशन में। उससे क्या होता है, हम लोग उससे डिमांड और सप्लाई प्रोजेक्शन बहुत अच्छे से लगा सकते हैं कि आगे चल के लोगों का डिमांड किस लेवल तक जाना चाहिए, जाएगा अगला 20 साल के बाद, और हम लोग का सप्लाई किस लेवल पे जाएगा। तो उससे क्या होता है, हम लोग सप्लाई चेन का डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ किस किस सेक्टर में हम लोग को फोकस करना है। जैसे पिग है, पिग का प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट, किस 3 सेक्टर में, किस सेक्टर में ज्यादा फोकस करने से हम लोग का डिमांड गेट फुल होगा, वो हम लोग इससे पता कर सकते हैं। आगे सर थोड़ा। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए हम लोग के लिए क्या क्या चैलेंजेस है। ये एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वुमेन फार्मर्स, जब हम लोग बात करते हैं वुमेन पिगरी फार्मर्स, जो मोस्ट कॉमन है नॉर्थ ईस्ट में, जो बैकयार्ड पिगरी फार्मिंग करते हैं, उन लोग को हम लोग ऐसे गिनती में लेते नहीं, हम लोग हमेशा मेल फार्मर को ही गिनती में लेते हैं। तो द थिंग इज दैट मेन प्रॉब्लम क्या होता है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट वो काफी कम है फीमेल काउंटर पार्ट्स का एज कम्पेयर टू द मेल काउंटर पार्ट्स, क्योंकि फीमेल ऑब्वियसली, फीमेल जो हम लोग के फार्मर्स है, अगर साइकोलॉजी एनालिसिस करें तो दे आर वेरी मच शाई काइंड ऑफ पर्सन, मतलब जानने का इच्छा है लेकिन बोलने का इच्छा नहीं है। तो जब तक आपको बोलने का इच्छा नहीं होगा तब तक अच्छे से आप जान भी नहीं पाओगे। तो दिस इज द मेजर साइकोलॉजिकल बैरियर, उसको भी हम लोग तोड़ने का आगे दिस इज द मेजर पॉइंट। अगर आपको अच्छे से फार्मिंग करना है, अच्छे से आपको फील्ड लेवल एक्सटेंशन एजेंट के साथ कांटेक्ट करना है, आप ये कांटेक्ट शुड बी वेरी स्ट्रांग, वो एक मेजर साइकोलॉजिकल बैरियर है जो तोड़ना है। वो अगर आप डेवलप स्टेट्स में जाओगे या डेवलप कंट्रीज में जाओगे तो देयर ये बैरियर बहुत कम है। तो इस बैरियर के कारण भी टेक्नोलॉजी का जो डिसिमिनेशन है आज के डेट में यही मेन इशू है। टेक्नोलॉजी बन तो रहा है डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सब रिसर्च कर रहा है पिगरी पे, सब रिसर्च कर रहा है लाइफ स्टॉक पे, बट डिसिमिनेशन पार्ट इज मिसिंग। तो उस चीज के लिए जितना हम लोग का फील्ड एक्सटेंशन वाले भी मेहनत कर रहे हैं, उतना आप लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्ट लेके आना है, और जो टेक्नोलॉजी हम लोग दे रहे हैं या जो हम लोग एक इनोवेशन दे रहे हैं उसको आप यूज करोगे। आपको देख के कॉन्सेप्ट है फार्मर टू फार्मर एक्सटेंशन, जिसमें बोला जाता है वो नेपाल में स्टार्ट करता है इन टर्म्स ऑफ राइस। उसमें क्या होता है, एक फार्मर जब एक इनोवेशन अपना फील्ड में वो उसको लगाता है और वो उससे सक्सेस मिलता है, तो ही बिकेम द उस फार्मर फिर पूरा गांव का समझाता है। जो फील्ड एक्सटेंशन का साइंटिस्ट होता है, आइदर इट इज वेटनरी, आइदर इट इज एग्रीकल्चर, आइदर इट इज हॉर्टिकल्चर, वो क्या करता है, उस फार्मर का एज एक्सपर्ट प्रेजेंट करता है उसका कम्युनिटी के सामने। तो क्या होता है, उसका ट्रस्टवर्दीनेस और उसका एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप लोगों के बीच में से अगर कोई प्रोग्रेसिव फार्मर आकर भाषण देगा तो आप लोग हमसे भी ज्यादा कंसंट्रेशन लेके सुनोगे, और आप यही कंपेयर करोगे कि वो अगर इतना कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता हूँ, वो जो किया है उसके फार्म में मैं भी करूंगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ठीक है, मैं भी सेम बात ही बोल रहा हूँ, बट इट सीम्स लिटिल बिट आपको लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं, ज्यादा साइंटिफिक चीजों में जा रहे हैं। तो आपका ही बीच का कोई अगर प्रोग्रेसिव फार्मर हो, सारा साइंटिफिक टेक्निक्स यूज किया हो, बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश बिजनेस शुरू किया, वो अगर आप लोगों को बोले तो वो और ज्यादा ट्रस्टवर्दीनेस और एक्सेप्टेबिलिटी आप लोगों में बहुत ज्यादा होता है उसका। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब हम लोग बाद में आएंगे। नेक्स्ट सर। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है आप लोगों का, जैसे आप लोग का रानी में एक सेंटर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ फ्री, वहाँ पे हम लोग का 2 प्लान चलता है, ट्राइबल सप्लाई, SC/ST सप्लाई, जहाँ पे हम लोग इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सब हम लोग SC/ST फार्मर्स के लिए रेसिडेंशियल ट्रेनिंग पूरा फ्री में होता है। आप लोग कभी भी हम लोग का वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो और कभी भी वहाँ पर फ्री पे आप लोग ट्रेनिंग ले सकते हो।
उसके बाद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हम लोग फॉर्म करते हैं डिफरेंट एरियाज में। आसाम का हम लोग दिखाएंगे कौन कौन सा हम लोग किए हैं। हम लोग का एक प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग फार्म है हम लोग का, जहाँ पे हम लोग पॉट से डिफरेंट प्रोसेस प्रोडक्ट बनाते हैं। और उसका हम लोग एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसके स्वार्थ में हम लोग उसमें डिफरेंट जो एंटरप्रेन्योर्स है उसको हम लोग टेक्नोलॉजी देते हैं अपना, वो अपना बिजनेस करता है, वो अपना प्रॉफिट कमा रहा है। हम लोग सिर्फ वी आर द टेक्नोलॉजी डेवलपर्स, जस्ट गिव द टेक्नोलॉजी टू द कोई ग्रुप ऑफ फार्मर्स। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो, आप लोग आ सकते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी ले सकते हो। आगे है हम लोग का टेक्नोलॉजी सब थोड़ा और भी आगे। तो ये डिफरेंट चैलेंजेस है जो मैं बोल दिया हूँ। जो मेनली यहाँ का आसाम का जितना भी हम लोग देखे, मेनली अनऑर्गेनाइज मार्केट से एक बड़ा इशू है। दूसरा आपका फीड का कॉस्ट, बिगिनिंग में 70% कॉस्ट आपका फीड का ही जाता है। वो दो चीज को अगर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा भी कोलैबोरेटिव अप्रोच के कारण से, उसके बाद आगे वाला जो प्रॉब्लम है वो लगभग सॉल्व हो ही जाता है। सर आगे तो एंटरप्रेन्योरशिप आप लोगों को मैं पहले ही बताया हूँ क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट आप लोग बना सकते हो, कैसे उसको एक बिजनेस के तरीके से आगे चल सकते हो। सर आगे ये डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप बेस्ड है, फैटनिंग फार्म्स है, फीड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स है, सीमेंट प्रोसेसिंग एआई सपोर्ट का भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, डायग्नोस्टिक किट का भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, कैसे डेवलप करें, फील्ड में कैसे यूज करें, प्रोसेसिंग यूनिट्स, डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स आप लोग कैसे शुरू करें अपने विलेज लेवल पे, अपने कम्युनिटी लेवल पे। नेक्स्ट सर, ये हम लोग का फार्म आप देख सकते हो, इसमें नियर अबाउट 1000 है अभी। तो बीच में हम लोग का फार्म में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था, अब इट इज ओके। आगे सर, तो ये है मेन चीज कि आप लोग को पैसा कहाँ से मिलेगा, आप प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे बैंक में लोन के लिए। तो ये मेन चीज रहता है हम लोग के पास। फार्मर का मेन क्वेश्चन रहता है कि सर हम लोग को पिग फार्मिंग करना है, क्रेडिट सिस्टम कहाँ से है। सर आगे थोड़ा आगे, ये आप लोग देख सकते हो, ये शायद आप लोग के लिए थोड़ा साइंटिफिक है, मैं इसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं। ये 20 सॉस का एक ब्रीडिंग फार्म का एक फाइनेंशियल टेली है, आप अगर देख सकते हो रफली आप लोगों को कितना पैसा चाहिए फॉर स्टार्टिंग है 20 सोर्स एंड 1 बोर ऑफ पिगरी फार्म। तो रफली आप देख सकते हो इसमें अगर नॉन रिकरिंग कॉस्ट होता है, ये है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। प्रोजेक्ट में 2 कॉस्ट होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब ये है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, जो आप लोग एक बार बना लिए हो तो वो आपका रहेगा कितना दिन बिजनेस चलेगा। तो उस हिसाब से हम लोग एक रफ एस्टिमेट किए हैं, उसमें पूरा इंडिया का ही जितना कॉस्ट है उसको हम लोग एवरेज करके इसको बनाया। इसमें आप देख लो 6,25,000 के आसपास आपका प्रीमियम प्राइमरी इन्वेस्टमेंट आएगा। सर नेक्स्ट, उसके बाद रिकरिंग कॉस्ट क्या है कि साल में हर साल चेंज करना है। कॉस्ट ऑफ एनिमल्स हो गया या फीड हो गया, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन हो गया, उसमें कितना लग रहा है। सर नेक्स्ट, तो इसमें अगर आप देख सकते हो तो फर्स्ट ईयर का इनकम हम लोग दिखा रहे हैं, जहां पे आप लोग सिर्फ पिगलेट ही बेच रहे हो फर्स्ट ईयर में। इसका इनकम हम लोग दिखा रहे हैं 4,80,000 के आसपास। क्योंकि इनकम यहाँ पे कम क्यों है, क्योंकि आप लोग का नॉन रिकरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा गया है इसके लिए। सर नेक्स्ट, ये रिकरिंग कॉस्ट सेकेंड ईयर का है। सर नेक्स्ट, ये ज्यादा साइंटिफिक होता है। नेक्स्ट कर, तो ये 5 साल का प्रोजेक्ट आप देख सकते हो। इस प्रोजेक्ट को इस 5 साल का अगर आप अपने एरिया के हिसाब से एक रफ प्रोजेक्ट बना सकते हो तो गवर्नमेंट का डिफरेंट स्कीम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो लोन के लिए। गवर्नमेंट आप लोग को बहुत कम इंटरेस्ट रेट में लोन देता है। सर आगे बढ़िए। उसके अलावा भी आप लोग फीड मिक्सिंग और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट सब लोग शुरू कर सकते हैं अपने हिसाब से। अपना साइलेज बना सकते हो डिफरेंट वेजिटेबल वेस्ट से, जो आप लोग का मार्केट में मिलता है। वेजिटेबल काटने के बाद जो वेस्ट है, फ्रूट का वेस्ट है, उसको आप लोग साइलेज टाइप का, अचार टाइप का बना सकते हो, जिसको जब लीव पीरियड में जब आप लोग के पास फीड नहीं है, फीड का कॉस्ट ज्यादा है, तब आप लोग उसको खिला सकते हो। और उसका भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं डिफरेंट कम्युनिटी लेवल पे। ये हम लोग का इंस्टीट्यूट का एक बना हुआ पिग का मिनरल मिक्सचर, जिसको पिग मिल बोलता है, वो भी कमर्शियलाइज हो गया है। अभी यहाँ पे मार्केट पे है कि नहीं पता नहीं, गुवाहाटी में है। तो इसको हम नहीं बोल रहे कि इसको लो आप लोग अपना ही जो वेजिटेबल का वेस्ट है उसका ही साइलेज बनाने का कोशिश करो, जिसका एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, कैसे आप लोग साइलेज बनाओगे और लीव पीरियड में उसको पिग को कैसे आप लोग फीड करोगे। ये फीड मिल है, ये तो आप जानते ही हो फीड को कैसे पैकेटिंग वगैरह करता है। ये सब, ये भी एक बिजनेस एंटरप्राइज में भी आ सकता है।
ये आसाम में है एक तो आगे ये देख लीजिए आप लोग। हम लोग अपना ये रानी मार्केट में ही ये हम लोग वेजिटेबल वेस्ट का ट्रेनिंग करवाते हैं। ऑन द स्पॉट फार्मर खुद बनाता है, सारा वेस्ट कलेक्ट करता है, खुद बनाता है और उसको पैकेटिंग करके अपने घर पे ले जाता है। आगे सर, ये सीमेंट प्रोसेसिंग यूनिट है हम लोग का। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप लोग सुने ही होंगे, बहुत लोग नहीं भी सुने होंगे। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, हम लोग एक दो सीमेंट प्रोसेसिंग सेंटर है जहाँ पे सीमेंट का हम लोग स्टॉक देते हैं फार्मर्स को, उसमें देते हैं टीएसपी एससी हम लोग एससी फार्मर्स को फ्री में देते हैं। अदर फार्मर्स के लिए भी हम लोग वेरी नॉमिनल चार्ज करते हैं। डेली के सुबह मिलता है हम लोग के इंस्टीट्यूट में 7 बजे से 10 बजे तक। एंड आप लोगों को विदिन 4 आवर्स जाकर उसको इंसिमिनेट करना होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम होने से उसका पार्टिसिपेट करने की रेट धीरे धीरे बढ़ जाता है। आगे सर, ये जैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल है, रूरल स्लॉटर हाउस का हम लोग का मॉडल है, जो 6 लाख के हिसाब से आप लोगों का बन जाएगा। क्योंकि कम्युनिटी लेवल, विलेज लेवल किसी में भी आप लोग बना सकते हो। इसका मेन पर्पस यही है कि अगर मान लीजिए आप लोग के पास लाइव पिग है, अगर आप जिंदा गाहरी को बेचते हो तो उसका हार्डली आप लोग को जो गुवाहाटी से ट्रेडर्स आता है, कहीं से भी बाहर से आता है, तो उसका आपको हार्डली 200 रुपए पर लाइव वेट मिलता है। लेकिन वही सेम गाहरी को वो अगर गुवाहाटी में बेचता है या किसी सिटी में बेचता है काट के, तो वो बेचता है 380, 400, इवन फेस्टिवल सीजन में वो 450 तक टच करता है। तो देयर इज ह्यूज गैप, 450 और 200 में 250 रुपए का गैप। उस गैप को हम लोग फुलफिल करने के लिए एक कम्युनिटी बेस्ड रूरल स्लॉटर हाउस का कॉन्सेप्ट लाया है, जो हम लोग का प्योर डिजाइन किया हुआ है हम लोग के इंस्टीट्यूट में ही। और ये टेक्नोलॉजी बहुत लोग लिया है, धेमाजी में भी ऐसा एक स्लॉटर हाउस है, लखीमपुर में भी बनाया है हम लोग एक डीबीटी का प्रोजेक्ट है उसके थ्रू। तो उसमें क्या है, आप लोग एफएसएसआई का जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आप लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे। आप लोग खुद अपने पीक को काटते हो और काट के उसको बेचते हो, ताकि ट्रेडर्स के बीच में आप लोग का 200 रुपए 250 रुपए का जो गैप है वो मिनिमाइज करके आपको पूरा कट प्राइस मिले। 350, 400 रुपए आप खुद बेच सकते हो उसको काट के। हालांकि जो जिसको हम लोग ट्रेनिंग देंगे वो आप लोगों से नॉमिनल फीस लेगा और कलिंग योर पिक आपके गावरी को काटने के लिए नॉमिनल फीस लेगा। लेकिन वो फीस भी उसके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप, कई नौजवान इससे अपना पेट भर सकते हैं। वो अगर इसको मतलब इम्प्लीमेंट करे कम्युनिटी लेवल पे, प्राइस इसका ज्यादा नहीं है, 6 लाख के आसपास आता है। तो उससे क्या होता है, जो काट रहा है उसके लिए भी एक लाइवलीहुड क्रिएट होता है, और जो आके कटवा के अपने मीट ले जा रहा है उसके लिए भी वो जो सप्लाई गैप है, जो प्राइस गैप है 200 रुपए का, आप लाइव 200 में बेचते हो और काट के वो 450, 400 में बेच रहा है। तो आप लोग पूरा कट मीट का ही आपको बेनिफिट मिलता है मार्केट में। तो वो 200 रुपए का गैप आप लोग नैरो कर देते हो, आप लोग का प्रॉफिट परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है। नेक्स्ट सर, ये प्रोसेसिंग का डिफरेंट आइटम्स है हम लोग का, जो हम लोग बनाते हैं, जैसे हैम का स्लाइस है, सलामी, कॉकटेल, सॉसेज, ये डिफरेंट प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। ट्रेनिंग भी देते हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेनिंग होता है, स्पेशली फॉर वुमेन फार्मर्स। मैं आगे दिखाऊंगा, ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, आप लोग बनाना सीखोगे, उधर पैकेटिंग भी सीखोगे। उसके बाद आप अपना कंपनी स्टार्ट करो या अपना कम्युनिटी में आप लोग बेचो, ठीक है। एफएसएसआई का रिक्वायरमेंट हमेशा मैंडेटरी नहीं होता। अगर आप बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन या बड़ा कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तब एफएसएसआई इज मैंडेटरी। अदरवाइज आप लोग अपने हिसाब से कम्युनिटी लेवल पे आप लोग शुरू कर सकते हो। जैसे आप शुरू किए, आपके साथ के घर, आपके गांव में 10 लोग भी 10 पैकेट आपसे ले लिए तो आपका बहुत प्रॉफिट होगा उस हिसाब से। नेक्स्ट, ये ग्रुप बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग ये ट्रेनिंग देते हैं। ये हम लोग का एलपीटी लैब है, लाइफस्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी लैब है, जहाँ पे डिफरेंट वुमेन ग्रुप्स आता है आसाम का डिफरेंट एरिया से। हम लोग डिफरेंट पूरा साल भर ट्रेनिंग करते हैं। अभी हालांकि अभी भी चल रहा है ट्रेनिंग, तो साल भर हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग सिखाते हैं कि कैसे आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हो। आप लोग हैंड्स ऑन एक्सरसाइज होता है, आप लोग खुद बनाते हो उस प्रोडक्ट को, हम लोग पैकिंग करते हैं और उस प्रोडक्ट को आप लोग को लेके भी जाने देते हैं कि जाके दिखाओ अपनी कम्युनिटी लेवल पे कि घर पे आप लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हो। विद घर का यूटेंसिल जो आप लोग के पास है, घर का जो सामान है, अदर देन दैट जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उसके लिए छोटा मोटा बिजनेस यूनिट अगर कोई इंटरेस्टेड है तो खोल सकते हैं। और छोटा मोटा सामान का भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं वहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। तो ये डिफरेंट एसएचजी है जो हम लोग जुड़ा हुआ है। ये वुमेन बेस्ड एसएचजी है कामरूप में,
सज्जन पारापुर हम लोग का इंस्टीट्यूट के आसपास है, 10 किलोमीटर के आसपास, ये भी हम लोग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सर, ये एक फार्मर फील्ड स्कूल है, जो एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू किए थे रंगिया में। स्टिल वो वुमेन फार्मर्स, पूरा वुमेन फार्मर्स लेके 30 फार्मर के आसपास, 30 के आसपास महिलाएं फार्मर था, जो हम लोग के साथ जुड़ा 1 साल तक जुड़ा। और इस ट्रेनिंग का एक सबसे यूनिक बात यह था कि ये ऑन फील्ड था। हम लोग खुद जाके साइंटिस्ट का ग्रुप खुद जाके, पहले 1 महीना एक साइंटिस्ट का ग्रुप जाएगा, दूसरा महीना दूसरा साइंटिस्ट का ग्रुप जाएगा, ऐसे मतलब पिगरी सेक्टर का प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट सारा एस्पेक्ट हम लोग कवर किए। एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, उन लोग को 1 साल तक ट्रेनिंग दी हम लोग, 12 मार्क्स। उसके बाद सर्टिफाई भी किए ये लोग को, ताकि ये लोग को बैंक लोन और ये सब मिलने में आसानी हो। बैंक लोन या गवर्नमेंट का कोई भी बेनिफिट, एनआरसीपी से 1 साल ये लोग ट्रेनिंग किया हुआ है, ये लोग कोई भी एंटरप्राइज शुरू कर सकता है। तो इस हिसाब से, और उसके बाद ये लोग खुद अपना बिजनेस शुरू किया, अपना प्रोडक्ट है ये लोग का, आगे हम लोग दिखाएंगे। नेक्स्ट सर, ये आप देख सकते हो ये लोग कैसे कैसे आके सीखा है। ये सॉसेज बनाना सीख रहा है, ये सलामी बनाना सीख रहा है, ये लेडीज ग्रुप ही है वहाँ सर। अगला नेक्स्ट, ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जो हम लोग शुरू किए गोरेश्वर में, जहाँ पे अभी तो 502 फार्मर्स है। ये लोग भी अपना फील्ड है, इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन सब हम लोग करते हैं वहाँ पे जाके, या 1-1.5 साल तक हम लोग किए हैं इस चीज को। अभी ये लोग के पास अपना खुद का डायरेक्टर है, खुद का एमडी है, सब कुछ ये लोग खुद करता है। नया नया फार्मर को जोड़ रहा है, पिगरी को कैसे और बढ़ावा दे। पूरा चिरांग, तामुलपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट में, सब 3-4 डिस्ट्रिक्ट का फार्मर इसमें जुड़ा हुआ है। अभी इसका फार्मर शेयर नियर अबाउट 1000 क्रॉस कर चुका है। एक एनजीओ है वो भी उसमें लगा हुआ है, और डिपार्टमेंट भी हम लोग को बहुत हेल्प कर रहा है। जो कंसर्न वेटनरी डॉक्टर है वो भी आते हैं हम लोग के साथ, कंसर्न आसाम गवर्नमेंट का जो लाइफ ऑफिसर वो लोग आते हैं, डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर आते हैं। तो हम लोग एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के हिसाब से वहाँ पे 4-5 डिस्ट्रिक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। 4-5 डिस्ट्रिक्ट का पॉकेट ऑफ विलेजेस से फार्मर है, एंड फार्मर्स आर शेयर होल्डर्स। यहाँ पे आप फार्मर से एसएचजी जैसा मेंबर नहीं होता है एफपीओ में। एफपीओ में फार्मर एक शेयर होल्डर होता है, एक बिजनेस होता है, जिसका जितना प्रॉफिट होगा, जिसका इसके शेयर के हिसाब से उतना प्रॉफिट उसको मिल जाएगा, उसका खाते में चला जाता है। तो इस टाइप का है, इस टाइप का ये लोग डिफरेंट प्रोडक्ट मेकिंग शुरू किया है। उसके बाद पिगलेट बेचना शुरू किया है, फैटनिंग फार्म शुरू किया है, डिफरेंट एंटरप्राइजेस ये लोग शुरू किया अपना प्रोड्यूसर कंपनी के थ्रू। सर ये एक सार पिग प्रोड्यूसर कंपनी आप देख सकते हैं, ये धेमाजी लोकलपुर का ही है। ये नियर अबाउट 2500 वुमेन फार्मर्स इसमें जुड़ा हुआ है। ये हम लोग का इंक्यूबेटी है, हम लोग का एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में ट्रेनिंग करके गया है। अब ये लोग सुभानश्री पॉर्क के नाम पे एक ब्रांड चालू किया। आसाम में आप कभी भी कृषि मेला या लाइफ स्टॉक मेला या कुछ भी मेला वाला जाओगे तो ये लोग आता है, कॉम्प्लीटली वुमेन फार्मर्स का ग्रुप है। ये लोग अपना प्रोडक्ट को बड़ा सुंदर से पैकिंग वगैरह करता है, पैकिंग वगैरह करके, जैसे इसमें नया नया ये लोग शुरू किया कागजी नींबू के साथ गावरी को मिक्स करके, उसके बाद बेम्बू शूट और गावरी को मिक्स करके ड्राई फर्मेंटेड गावरी, स्मोक्ड गावरी, डिफरेंट प्रोडक्ट को बना के ये लोग के एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन भी है। बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव पैकिंग करके, प्राइस रेंज भी ये लोग का मिडिल प्राइस रेंज है, और ये लोग अच्छे से प्रॉफिट कर रहे हैं। अपना ब्रांड अभी ये लोग का सार पिग प्रोड्यूसर कंपनी का जो ब्रांड है अभी मार्केट में आप लोग बोल सकते हैं एस्टेब्लिश्ड है। ये लोग पिछला 6-7 साल से हम लोग से साथ जुड़ा हुआ है। अब ये लोग का खुद का इंडस्ट्री है, खुद का ये लोग प्रोसेस प्रोडक्ट बना रहा है। ये थोड़ा पीछे, ये हम लोग का डिफरेंट इनिशिएटिव है जो हम लोग कराते हैं फार्मर के लिए। जैसे हम बोले एक प्लान होता है ट्राइबल सब प्लान, जिसके अंतर्गत हम लोग इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग पूरा फ्री कराते हैं फार्मर्स के लिए, कोई कॉस्ट नहीं है। रेसिडेंशियल ट्रेनिंग 7 दिन 1 महीना, अभी जनवरी से हम लोग का ट्रेनिंग है, नेशनल ट्रेनिंग फॉर एसटी फार्मर, 1 महीने का ट्रेनिंग है। आप लोग का रहना, खाना, आना जाना, ट्रांसपोर्ट टोटली फ्री है। गेस्ट हाउस है हम लोग का फार्मर गेस्ट हाउस, उसमें हम लोग 1 महीना तक ट्रेनिंग देंगे। कोई 7 दिन के लिए आता है, कोई 15 दिन के लिए आता है, कोई 3 दिन के लिए आता है, ऐसा डिफरेंट ट्रेनिंग है। आप लोग को जाना होगा, आप लोग थ्रू कंसल्ट सर है, सर मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग का भी ग्रुप जा सकता है वहाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को जो भी इंटरेस्टेड हो वहाँ पे रह के खाना, रहना, आप लोग का ट्रेनिंग पूरा फ्री है। सारा साइंटिस्ट क्लास लेगा, आप लोग को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगा, फील्ड ले जाएगा, दिखाएगा डिजीज एनिमल कैसा होता है, हेल्दी एनिमल कैसा होता है, क्या डिफरेंसेस है, प्रोडक्ट कैसे बना है, प्रोडक्ट के लैब में ट्रेनिंग होता है। तो अंटिल एंड अनलेस आप लोग
खुद हाथ से बना के सीखते हो, उससे क्या होता है, उससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि सर आगे चल के ये करता है। फोटो में तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, तो अंडे आप लोग मुझसे इंटरेस्ट दिखाओगे तो थ्रू आप लोग सर से भी कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को कि सर हम लोग करना चाहते हैं, ये ट्रेनिंग है, हम लोग साल भर ट्रेनिंग कराते हैं और SC/ST फार्मर्स के लिए टोटली फ्री है। अदर फार्मर्स के लिए भी हम लोग एक नॉमिनल चार्ज करते हैं, बहुत नॉमिनल, जो गवर्नमेंट रेट पे होता है। नेक्स्ट सर, तो ये डिफरेंट आप देख सकते हो, ये डिफरेंट सक्सेसफुल फार्मर्स है, नॉर्थ ईस्ट का डिफरेंट एरिया से, इंडिया का डिफरेंट एरिया से। ओनली पिगरी में क्या क्या किया है लोग, गवर्नमेंट ये लोग को रिकॉग्नाइज किया है, ये DASD का वेबसाइट से लिया गया है। DASD ये लोग को, DASD होता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है, जो इंडिया का पूरा लाइफस्टॉक सेक्टर को देखता है। DASD ये लोग को अवार्ड किया है फॉर इनोवेशंस इन पिगरी फार्मिंग। ये पिगरी फार्मिंग में क्या क्या किया है उसके लिए DASD ये लोग को अवार्ड किया है। उसमें आप देख सकते हो ये मेघालय की महिला है, ये रांची की है, मैक्सिमम महिला फार्मर्स जो है वो आगे आ रही है पिगरी सेक्टर में। तो इसको ये लोग को दिल्ली बुलाते हैं, दिल्ली बुला के ICR डे के दिन ये लोग को फेलिसिटेट किया जाता है। 16 जुलाई में ICR डे के दिन ये लोग को फेलिसिटेट किया जाता है थ्रू मिनिस्ट्री। मतलब ये एक बहुत बड़ा सम्मान है आप लोग के लिए। सर आगे थोड़ा और आगे चलिए सर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आप लोग को पता है, पिगरी में भी आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हो। वैसे तो बहुत एंटरप्राइज में पिगरी को हटा देने से भी राइस में, व्हीट में, चावल में, जो भी हो, पल्सेस में, सब में सेल्फ हेल्प ग्रुप बन सकता है। कोई भी एंटरप्राइज लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप बन सकता है। आजकल बंधन बैंक का भी कॉन्सेप्ट आ गया, बंधन का भी कॉन्सेप्ट आ गया, उसमें भी आप लोग पिगरी को जोड़ सकते हो। तो पिगरी ऐसे आप लोग का कैपिटल फॉर्मेशन यूनिट, वो आप लोग शुरू कर सकते हो। SHG फॉर्मेशन, SHG आप लोग सबको पता है, सब किसी ना किसी वुमेन SHG का मेंबर होता है। तो SHG के द्वारा भी आप लोग फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हो। मतलब उसमें क्या है, आप लोगों के साथ अकेला हम फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ 10 लोग और जुड़ा हुआ है, तो रिस्क भी जो होगा वो 10 लोगों में बढ़ जाएगा, प्रॉफिट भी जो होगा वो 10 लोगों में बढ़ जाएगा। तो ज्यादा रिस्क इन्वॉल्वमेंट आप लोगों का लिए, तो इस चीज के लिए हम लोग ग्रुप फॉर्मेशन का डिफरेंट टेक्निक्स को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जैसे SHG हो गया, FP हो गया, जिसमें शेयर सबको मिलता है, फायदा सबको मिलता है, रिस्क भी होता है जो सब में बढ़ जाता है। तो इंडिविजुअल फार्मर का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, उसका ज्यादा कैपिटल लॉस नहीं होता है। और हम लोग हमेशा ये भी बोलते हैं कि अपने फार्म में हमेशा डाइवर्सिफिकेशन रखो। आप पिगरी भी करो, जैसे आप मलेशिया, चाइना, ये सब कंट्री में जाओगे, फिलीपाइंस, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है चाइना में, पिग कम फिश फार्मिंग। पॉन्ड के ऊपर पिग का ये लोग वो बना देता है, जो आप लोग का घर होता है, और उसका जो एक एक्सट्रीटा है वो पॉन्ड में आता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप का फिश होता है, सब फिश उसमें नहीं बचेगा, कुछ स्पेसिफिक टाइप का फिश होता है जो मतलब जिसका सेल वैल्यू अच्छा होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप का फिश वो फार्मर तैयार करता है। तो ये भी एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, ये साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत चल रहा है, जैसे वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब कंट्री में ये सब चलता है कि पिग कम फिश फार्मिंग, कि एक एंटरप्राइज अगर आपका फेल भी हो जाए तो दूसरा एंटरप्राइज से आप लोगों को थोड़ा बहुत, हम लोग हमेशा ये एनकरेज करते हैं कि डाइवर्सिफाई आपका फार्म, थोड़ा बहुत लाइफस्टॉक सेक्टर होने से भी थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करो। क्योंकि इस बार जो ASF का हम लोग देखे, जो ASF का इम्पैक्ट था, बहुत पिगरी फार्मर का ऐसा हुआ कि 200 पिग का 200 टन कर दिया, तो उसका बहुत बुरा हाल था कि जितना भी लोन लिया उसको कैसे चुकाएगा, कैसे उसके पास पैसा आएगा। और आप लोग डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा चावल करो, थोड़ा गेहूं करो, थोड़ा मक्का करो, पल्सेस करो, वो अपने छोटा जगह में कर सकते हो। लाइफस्टॉक में भी आप थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हो, थोड़ा पोल्ट्री रख सकते हो, गोट रख सकते हो, पिगरी भी रखो, पिगरी का ही अपनी माइंड कर रहे हैं, बट फार्मर का इंटरेस्ट है सोचते हुए, क्योंकि एक जो डिवास्टेटिंग डिजीज है जिससे पूरा उसका इकोनॉमी खराब हो जाता है, उसके लिए ऑल्टरनेट ऑप्शन रखना थोड़ा बहुत जरूरी है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। सर नेक्स्ट, ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो आप लोगों को पता ही है, इसमें नया नेक्स्ट सर, फिर नेक्स्ट सर, ये डिफरेंट केस स्टडी है बेटी, ये गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट का केस स्टडी है SHG का, कितना लिया था, कितना प्रॉफिट हुआ है, आप देख ही सकते हो। पहले कितना लिया था, आपके लिए 38 पे लिया, उसके बाद एक मिनी पिग फार्म शुरू किया, उसके बाद उसका कितना पैसा आया है, 1500 से 1800 पर पीरियड को बेचा है और 80,000 का प्रॉफिट मिला है। आगे सर,
तो ये डिफरेंट कहाँ कहाँ आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। एक तो फिर ब्रीडिंग फार्म कर सकते हो, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग चाह रहे, ज्यादा इंटरेस्टेड है। प्रोसेसिंग यूनिट का एक एसएचजी आप लोग शुरू कर सकते हो, अपने से बनाना सीख के, हम लोग से ट्रेनिंग लेके अपने से बनाइए, अपने से पैकेटिंग करिए, अपने कम्युनिटी में बेचिए। हम लोग नहीं बोल रहे कि आप लोग एक मेजर चंक ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करिए, आप अपने कम्युनिटी में टारगेट करिए, उससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। आप लोगों को पूरा आसाम या पूरा इंडिया में नहीं बेचना है, उसके लिए एफएसएसआई का रिक्वायरमेंट चाहिए। आगे सर, ये एफपीओ जो आप लोगों को बताया है, एफपीओ क्या है और एफपीओ को कैसे आप लोग बना सकते हो पिगरी सेक्टर में। आगे सर, ये डिफरेंट फीचर्स ऑफ एफपीओ है, ये आप लोग नहीं भी समझेंगे तब चलेगा। आगे सर, ये सर आप लोग को समझा दूंगा। ये डिफरेंट लीगल फॉर्म्स है। आगे सर, ये कंपनी है क्या है, एफपीओ कैसे कंपनी बनता है, कंपनी में कितना लोग होना चाहिए। आगे सर, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है। आगे चलिए सर, इसको भी आगे कर दीजिए सर। नाबार्ड के बारे में सबको पता ही है कि नाबार्ड आप लोगों को फंडिंग देता है एफपीओ फॉर्मेशन के लिए। उसके अलावा भी एसएफएसी बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल फार्मास्यूटिकल बिजनेस कंसोर्टियम, वो भी हर स्टेट में होता है। वो भी एफपीओ बनाने के लिए स्पेशली अगर वो वुमेन एफपीओ है तो और ज्यादा आगे बढ़ता है। इंटरेस्ट वो 2.53% तक रहता है, कभी कभी इंटरेस्ट माफ भी कर देता है, क्योंकि नाबार्ड एक ऐसा बैंक है, वो बना ही है एग्रीकल्चर और लाइफस्टॉक को सपोर्ट करने के लिए। आगे सर, ये आप लोग को बता ही दिए स्मॉल फार्मास्यूटिकल बिजनेस कंसोर्टियम। आगे चलते सर, ये डिफरेंट फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी जो आप लोगों को मैं दिखाया हुआ है उस हिसाब से क्या क्या करते हैं ये लोग, क्या क्या एक्चुअली देयर एक्टिविटीज है और वो आगे क्या करना चाहते हैं। आगे चलिए सर, ये क्या क्या चैलेंजेस है। आगे चलते, इसको बाद में मैं वीडियो डाल दिखाऊंगा, इसको आप आगे कर सकते हैं। नहीं, इसको आप पीछे कर दीजिए सर। हाँ, ये क्रेडिट एंड एक्सटेंशन सपोर्ट क्या क्या आप लोगों को मिल सकता है। पैसा कहाँ से ले, किसान क्रेडिट कार्ड बोल के एक स्कीम है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे कोई लिया है किसान क्रेडिट कार्ड से, कोई पैसा लिया है अब तक? किसी के पास है किसान क्रेडिट कार्ड? ये सब कॉन्सेप्ट आप लोग जब जानोगे नहीं तब तक आप लोग पैसा कैसे अवेल कर सकते हो। अगर आप हरियाणा, पंजाब ये सब जगह में जाओगे तो ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, और वो एक फार्मर 10-10 लोन लेके रखता है किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उसका रिकवरी बहुत आसान है, उसका रिकवरी में लोग चाहता नहीं है। फार्मर के ऊपर प्रेशर गवर्नमेंट नहीं देता है कि उसका रिकवरी करो, तो लोग ऐसा भी बहुत फार्मर है जो उसका लोन को गलत जगह माफ कर देता है। तो ये एक मेजर चंक ऑफ क्रेडिट का आपका सोर्स है कि ज्यादातर सेंट्रल इंडिया में जाओगे, आप नॉर्दर्न इंडिया में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट का फार्मर का इसका अवेयरनेस बहुत कम है। कि बैंक ऑफ बड़ौदा जाओ, पीएनबी जाओ, सब आपको किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। एक स्पेशलाइज्ड ऑफिसर होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हर बैंक में, जो क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करता है फार्मर को। उसके लिए आप लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, आप लोग का अवेयरनेस नहीं बनेगा, आप लोग कैसे पैसा अवेल कर सकते हो। आप लोग एक ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा, या यहाँ आए हो, इसका यहाँ पे अटेंड हुई आप लोग बोल सकते हो, और मैं इतना दिन से पाल रहा हूँ तो मैं इसका बिजनेस कर सकता हूँ, इसका हमें क्रेडिट सपोर्ट मिल सकता है बैंक से। बैंक बैठा है आप लोगों को क्रेडिट सपोर्ट देने के लिए, और इसका इंटरेस्ट पर एनम भी 4% होता है। जहाँ पे आप दूसरा लोन लेने जाओगे इसका 8.5, 10.5, 12.5 कॉमन है, 8.5 से नीचे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है इसके लिए, इसका 4% इंटरेस्ट है। तो केसीसी आप लोग जितना जल्दी अवेल करोगे, हालांकि एग्रीकल्चर फार्मर ज्यादा केसीसी अवेल करता है, लेकिन केसीसी इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर लाइवस्टॉक फार्मर्स। ये बहुत फार्मर को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड आप लोग लाइवस्टॉक के लिए भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट इतना प्रोविजन दिया है। आगे सब थोड़ा नेक्स्ट एनएलएम के थ्रू भी नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, ये भी एक गवर्नमेंट तेरे पानी को खाई से
পানীটো খাইছে বুলি। এই আমি গাহৰিৰ মাংসৰ যোনটো স্লাইচ থাকে সেই স্লাইচটো লৈ পিনে আমি খাব পাৰোঁ। সেইটো মানে আপোনাৰ বনাবৰ কাৰণে আপোনাৰ জাষ্ট টাৱাত দি পিনে ব্ৰেডৰ মাজত লৈ পিনে খাব পাৰে। চ' এইবোৰ কিছুমান মানে প্ৰডাক্ট আছে আমাৰ গাহৰিৰ। এই প্ৰডাক্টবোৰৰ কথা মানে ছাৰে যিটো ক'লে যে এই প্ৰডাক্টবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ NRC ৰাণী আমাৰ যিখন মানে আমাৰ পিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ আছে ৰাণী, তাত এই প্ৰডাক্টবোৰ বনোৱা প্লাছ তাৰে পেকেজিং আৰু মাৰ্কেটিং ইয়াৰে মানে ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। তো স্যার তারপরে আহিছে আমার NRC রানিৰ পৰা আহিছে। তো আপোনালোকৰ মাজত যদি কোনোবা ইচ্ছুক আছে এই প্ৰডাক্টবোৰৰ মানে বিষয়ে জানিবকে বা এই প্ৰডাক্ট কেনেকৈ বনায়, যেনেকৈ এইটো চচেজ বা চালামি থাকে সেইবোৰ কেনেকৈ বনায় বা ইয়াৰে বিজনেছ যদি কোনোবাই কৰিব খোজে তো তেওঁলোকে আমাৰ ছাৰক বা আমাকো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আমাৰ থ্ৰুদি মানে আমি আপোনালোকক ৰাণীলৈকে গৈ পিনে তাত প্ৰশিক্ষণ ল'ব পৰা ফেচিলিটি আমি প্ৰভাইড দিব পাৰিম। আৰু তাৰে জনোৱা মতে আমাৰ মানে যিখিনি SC ST আৰু OBC মানে যোনবোৰ আমাৰ খেতিয়ক হয় তেখেতসকলৰ বাবে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণৰ মাচুল নহয়। কিন্তু যোনবোৰ জেনেৰেল হয় তেখেতৰ মানে এটা জেনেৰেল মানুহবোৰৰ মানে এটা মানে বহুত ক'ব পাৰে সৰু মাচুল এটা মানে দিব লাগে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে। মই এটা ছাৰক সুধি পিনে বাৰু প্ৰশিক্ষণৰ এইটো মই এবাৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিম। আপোনালোকৰ মানে ফ্ৰী হ'ব। আৰু যোন জেনেৰেল আৰু OBC যোনবোৰ আমাৰ মানে খেতিয়ক আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা মানে বহুত নমিনেল এটা আপোনাৰ ক'ব পাৰে মানে মাচুলতে মানে আপোনালোকে এই ট্ৰেইনিংটো তাতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তাত আপোনালোকৰ থাকা প্লাছ খোৱা চ' সেই ট্ৰেইনিংটো ভিতৰতে মানে ইনক্লুডেড হ'ব এই প্ৰডাক্টবোৰ বনোৱা। আৰু এই প্ৰডাক্টবোৰৰ কথা মানে আমাৰ যিহেতুকে আপোনালোকে অকণমান মানে বুজাত দিগদাৰ হৈছে, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডক্টৰ অনিন্দিতা মালিক। তেখেত আমাৰ ভেটেনেৰী অফিচাৰ হয় কঁঠালগুৰি চেণ্টাৰৰ। তো তেখেতক মই এবাৰ আহ্বান কৰিম যাতে তেখেতে অকণমান অসমীয়া ভাষাটো বুজিব। মই ডক্টৰ অনিন্দিতা মালিক, মই ভেটেনেৰী অফিচাৰ হয় কঁঠালগুৰিৰ। মই বেছি ইমান ক'বলৈ নাযাওঁ, মানে কি হয় আমি গাহৰিটো নৰ্মেলি কিমানকৈ আপোনালোকে বিক্ৰী কৰি আছে 300 বা 350 এনেকুৱা হয় ন মাংসৰ দাম। কিন্তু আপুনি যেতিয়া সিটো মাংসৰ এটা প্ৰডাক্ট বনাব ন তেতিয়া এই দামটো বাঢ়ি যায়। আপোনালোকে এতিয়া চবেইতো গাহৰি খাই চাগে, হয়নে? আপোনালোকে এতিয়া গাহৰিটো কেনেকৈ বিক্ৰী কৰে? মাৰ্কেটত যিমান ভেলু হৈ আছে সিমান বিক্ৰী কৰে ন, 300 টকা কেজি বা 350 টকা তেনেকুৱা বিক্ৰী কৰে। কিন্তু আপুনি যেতিয়া প্ৰডাক্ট বনাব, আপুনি যদি চাপ'জ গাহৰিটো নিজে কাটি পিনে তাৰে যদি প্ৰডাক্ট বনায় তেনেহ'লে দামটো বাঢ়ি যায়, আপোনাৰ প্ৰফিটটো বেছি হয়। ইউজুৱেলি আমি কি কৰোঁ মানে মানুহবোৰে মানে খেতিয়কবোৰে ডাইৰেক্ট আমি গাহৰিটো কোনোবা এটা মানুহ বিক্ৰী কৰি দিওঁ, সেই মানুহজনে কাটি মানে কাটি কিনে তাক বিক্ৰী কৰে। তো লাভটো কি হয়, আপোনাৰ গোটেইখিনি লাভ আপুনি নাপায়। আপুনি জাষ্ট কিবা এটা পৰ্চন আপোনাৰ মানে কি গাহৰিটো পোহাৰ নামত যিখিনি খৰচ হ'ল আপুনি সেইখিনিহে পায় মূলটো ন। কিন্তু যোনটো মানুহে আপোনাৰ পৰা কিনি কিনে গাহৰিটো বিক্ৰী কৰিব সি কিন্তু এতিয়া চাব গ'লে একো কষ্ট নাই, খালি আপোনাৰ পৰা দামত কিনিব আৰু বিক্ৰী কৰি নিজে এটা প্ৰফিট বনাব। কিন্তু কষ্টখিনি চব আপোনালোকে কৰিলে ন, সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰি কিনে স্বাস্থ্যটো বঢ়ালে, হয় নহয়? তো সিটো সেই বেলেগ মানুহজনক সেই প্ৰফিটটো দিয়াতকে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, যেনেকুৱা আপোনালোকে আত্মসহায়ক গ্ৰুপ চব আছে ন, 10টা হওক 11টা হওক তেনেকৈ। তো আপোনালোকে যেনেকৈ ছাৰে ক'ল ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে। এতিয়া মানে কি এতিয়া মই ক'ব গ'লেতো আপোনাৰ গোটেই প্ৰচেছটো বুজা সম্ভৱ নহয় ইয়াতে। তো সেইকাৰণে মানে যেতিয়া আপোনালোকে জানিব বিচাৰে কেনেকৈ প্ৰডাক্টখিনি বনায়, আমাৰ মাইকী মানুহবোৰতো খানা বনোৱাত এক্সপাৰ্ট হয় ন, আপুনি জাষ্ট টেকনিকটো জানিব লাগে কি বস্তুটো বনায় কেনেকৈ। আপোনালোকে যদি প্ৰডাক্টবোৰ চাবলৈ বিচাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় প্ৰডাক্টবোৰ, আপুনি আমাৰ ভেটেনেৰী যোনটো ষ্টল আছে তাতে যাই এবাৰ জাষ্ট চাব পাৰে কি এনেকুৱা এনেকুৱা এইবোৰ বস্তু আমি বনাব পাৰোঁ গাহৰিৰ পৰা। আৰু আমাৰ চাইণ্টিফিক টাৰ্মছত এটা কথা কয় কি গাহৰিৰ মানে সকলো মানে গাহৰিৰ এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যে আমি একো বস্তু ৱেষ্ট নাযায়, অকল নেমুন আৰু বাহিৰ বাকী চব বস্তুৰ পৰা আপুনি বস্তু বনাব পাৰে। আপুনি আজিকালি যদি বাহিৰত ফেঞ্চি ৰেষ্টুৰেণ্টত খাব যায় পৰ্ক ৰিবছ বুলি এটা বস্তু পায় হা, মানে যোনটো কামি খাই যে স্লাইচেছ
সেইটো কেজি পাই যাব ন তো সেইকাৰণে মানে কি হয় আমি যেতিয়া এইবোৰ প্ৰডাক্ট আমি যদি শিকিলোঁ বনাবলৈ আৰু আপুনি ইয়াতে দেখা পাইছে এটা বহুত আত্মসহায়ক গ্ৰুপ আহিছে যোনে নিজে নিজে আপোনাৰ মেটেকাৰ পৰা বেগ বনাইছে এইটো এটা প্ৰফিট বিজনেছ হয় ৰাইট তো চেম তেনেধৰণৰ আমাৰ যোনবোৰ মানে যোনটো পশুপালনৰ লগত লাগি আছে এওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰফিট কৰিব পাৰে আমাৰতো বেলেগ এনেকুৱা মেটেকা বা তেনেকুৱা একো প্ৰফিট চিষ্টেম নাই আপুনি কি কয় ডাইৰেক্টলি মানে ছাগলী বেচিলে বা গাহৰি বেচিলে তেনেকুৱা ন এডিশ্যনেল প্ৰফিট পাবলৈ আপোনালোকে যদি ট্ৰেইনিংবোৰ লৈ লয় আৰু প্ৰডাক্ট বিষয়ে যদি জানি লয় তেনেহ'লে আপোনাৰ বহুত লাভৰ খাব পাৰে আৰু এনেকুৱা বিজনেছবোৰ মানে কি হয় আপুনি দেখা পাৰে আমাৰ NRC পিগৰ তেওঁলোকৰ এটা ব্ৰেণ্ড আছে লুইট পৰ্ট বুলি তো তেওঁলোকে সেইবোৰ মানে কি কৰে চব প্ৰডাক্টছবোৰ বনায় আৰু তেনেকৈ মানে পেকেজিং কৰি বিক্ৰী কৰে তো আপোনাৰ 200 গ্ৰাম মাংসতে তেওঁলোকে ছাপ'জ 150 180 তেনেকুৱা চাৰ্জ কৰে হা এই প্ৰডাক্টবোৰ কেনেকুৱা জানে আমাৰ নৰ্মেল ছাপ'জ পকৰা যেনেকৈ বনাব হ'লে এক্সট্ৰাকৈ ময়দা মিক্স কৰি আমি এইবোৰ চচেজ টিউব হ'লে ফটোত দেখিছে চাগে চবেই ভিডিঅ'তে তাতে মানে কি হয় চচেজটো বস্তুটো আপোনাৰ আগতে কি কৰিছিলে গাহৰিৰ নাড়ীবোৰ যে থাকে সৰু সৰু ভিতৰতে মানে মাংস তাৰ লগতে আপোনাৰ ময়দা অলপ প্লাছ মছলা তেল সেইবোৰ মিক্স কৰি কিনে সোমাই দিয়ে সোমাই দিটো সিদ্ধ হ'বলৈ দিয়ে সিদ্ধ হ'লে কি হয় মাংসটো গোট খাই যায় মানে বুজি পাইছে ন তো সেইটোৱে কাট মাৰি মানে কিমান চাইজৰ হৈ যায় বা আপুনি চেম তেনেধৰণৰে আপুনি এটা মাংসৰ প্ৰডাক্ট ছাপ'জ তাতে কি থাকে মাংস থাকে অলপ তেল অলপ ফেট তাই থাকে অলপ মছলা নহৰু পিঁয়াজ এইবোৰ প্লাছ তাই থাকে অলপ আপুনি নৰ্মেল যদি মিক্সিটো মাৰি কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰে মাংস পকৰা বা বল নিচিনা বনাব ঠিক তেনেকুৱা কিন্তু মানে কিবা চাইণ্টিফিক মেথড এটা হয় আমি এইখিনি পাৰ্চেণ্ট দিব লাগে এইখিনি ইমান দিব লাগে সেইবোৰ তাৰ যি কৈছে FSSAI গাইডলাইনছ মতে আমি বজাৰত যোনবোৰ বস্তু খাওঁ যে সেইবোৰ চব এটা গাইডলাইনছ থাকে মানে আপুনি আপোনাৰ হিচাপত মই মাংসটো বেছি দিম বা কিবাটো কম দিম তেনেকুৱা নহয় মানে ন আপুনি নৰ্মেল খাবলৈ হ'লে বা দুজন মানুহক এনে বিক্ৰী কৰিবলৈ সেইটো পাৰে কিন্তু যদি আপুনি নেশ্যনেল লেভেল বা ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত যদি বিক্ৰী কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেইটো মানে এটা চাইণ্টিফিক এটা লিমিট থাকে বুজি পাইছে ন আৰু এইবোৰ প্ৰডাক্ট মানে কি হয় মেইনলি আপোনাক যেনে ক'লোঁ আপোনাৰ প্ৰফিটটো বঢ়াবৰ কাৰণে যদি কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেনেকুৱা আৰু এইবোৰ মানে কি হয় আমাৰ মহিলাবোৰক আমি বেছিকৈ কেলৈ ফ'কাছ কৰিছোঁ তো আপোনালোকে এইবোৰ অভ্যাস আছে মানে আপোনালোকে জাষ্ট টেকনিকটো নাজানে জাষ্ট সেই মানে যোনখিনি মানে আপোনাৰ কিমান পৰিমাণ লাগে বা মেথডটো সেইটো নাজানে বাকী আপোনালোকে চব পাৰিব আৰু এইবোৰ আপুনি পেকেজিং কৰি কিনে আপুনি ছাপ'জ আচাৰ এটা আপুনি নিজে ঘৰত বনাইছে আপুনি এনে খাব লাগিব যদি আপুনি লেবেলিং কৰি বিক্ৰী কৰে তাৰ প্ৰফিট বেছি পায় ন ঠিক তেনেধৰণেৰে আমাৰ এইটো গাহৰিৰ পৰা ব্ৰেড প্ৰডাক্ট বনাব পাৰি খালি প্ৰডাক্টবোৰ এনেকুৱা হয় কি আপুনি এটা ট্ৰেইনিং এটা ল'ব লাগে ন আৰু এইবোৰ বিজনেছবোৰ কৰিবলৈ হ'লে যেনেকৈ ছাৰে ক'লে কি লোনৰ দৰকাৰ হয় কাৰণ আমাৰ তাতে ইমান পইচা নাথাকে কি আমি এটা বিজনেছ কৰিব পাৰোঁ সেই লোনবোৰ মানে কি হয় আপুনি ছাৰে যেনেকৈ ক'লে KCC লোন আপোনালোকে চবে জানে চাগে KCC কথা আৰু যদি ইনকেছ নেজানে যদি গাহৰি পালন কৰিবলৈ বিচাৰিছে আপুনি নৰ্মেল আমাৰ ভেটেনাৰী অফিচাৰ আছে জ্ঞানী একেলগে কণ্টেক্ট কৰিলেও আপোনাক যোনবোৰ স্কিম এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে য'ত আপুনি ছাবচিডি পাব পাৰে নহ'লে আপুনি কম ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে লোন পাব পাৰে সেইবোৰ তেওঁলোকে কৈ দিব আৰু কিবা যদি ডাউট আছে আপুনি দিব পাৰে কিবা কামত দিবলগীয়া আছে নেকি আপুনি বেংকত খবৰ ল'ব কিন্তু ডক্টৰ জ্ঞানীজনক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল তেওঁ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আপোনাক ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব বেংকত কি কৈছে হয় আপোনাৰ কাষত এজন আছে তেখেত আমাৰ ভেটেনাৰী ডক্টৰ হয় ইনফৰ্মৰ তো আপুনি বেংকত জাষ্ট খবৰ লৈ
আন্তৰিকে কি আছিলে মূলধন, দ্বিতীয়তে কি কৈছিলো আমাৰ প্ৰশিক্ষণ, তৃতীয়তে আমি কি কৈছিলো ব্ৰেণ্ডিং বিপণন, আৰু চতুৰ্থতে আমি কি কৈছিলো আন্তঃগাঁথনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। এই গোটেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰতে এইখন আঁচনিয়ে আপোনালোকক বেলেগ বেলেগ ধৰণে সহায় কৰে। প্ৰথম পৰ্যায়ত আপোনালোকে খালি চিন্তা কৰিব লাগিব যে ৩৫% যোনটো আপোনালোকে সাবসিডি পাব অন দা বেংক লোন, সেইটোত মই কি ধৰণে আনো মানে গম পাইছেনে? প্ৰাৰম্ভিক মূলধন দি আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে, যোনটো আমাৰ চিড কেপিটেল, সেইটো আছে। কোনোবাই বেকাৰীয়ে বনাই আছে, তেওঁলোকক সংস্থাপন কৰাব বিচাৰিছে, আত্মনিৰ্ভৰ কৰাব বিচাৰিছে, আৰু আত্মনিৰ্ভৰ হ'বলৈ আমাৰ পইচাৰ প্ৰয়োজন আছে, হয়নে? চ' গতিকে আমি বেংকৰ লোন লৈ মোৰ ব্যৱসায়টো কি ধৰণে ডাঙৰ কৰিব পাৰো আৰু আমাৰ আঁচনিৰ পৰা কি ধৰণে সুবিধা ল'ব পাৰে, এই কথাখিনি লৈ পেলাই আজি আমাৰ এই মূল বিষয়বস্তুটো আছে। চ' গতিকে মই আৰু বিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ, আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবিলাক এতিয়া মই লওঁ, কাৰণ প্ৰশ্নবিলাক আপোনালোকে সুধিলেহে আপোনালোকৰ ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব। চ' কাৰণে তেনেকৈ হাবি চব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ